हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 उसमें डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट द क्वेश्चन? Which of the following pairs of the linear equations are consistent or the inconsistent? यानी the pairs of the equations are given to us. We have to just confirm it's a consistent or inconsistent. When we can say the pair of equations are consistent, when we have the solution, either unique or infinite solution. Okay, and when we can say it's inconsistent, when we didn't have the solution, that means for the parallel lines. Okay, and if the pair of equation it's a consistent, so obtain the solution graphically. That means we have to plot a graph. Okay, so let's discuss about the question. Now very first question, first we will check it's consistent or inconsistent. For that we have to verify the conditions, and for verify the conditions we have to first find out the coefficients of these equations. Okay, so coefficients we will calculate. Okay, now see, first of all, in both the equations constant terms that is on the right side, so no worries. Okay, we can do the calculation. Okay, either both the constant terms should be right side or the left side we require. Okay, x and y terms already on one side, so we can take the coefficients directly. For the first equation, the coefficients are a1, b1 and c1. For the second equation, the coefficients are a2, b2 and c2. For the first equation, coefficient of x, that is the 1. Coefficient of y, that is the nothing number, any number, so it's a 1. c1, that it's a constant term, we can take it 5. Now for the second equation, x coefficient, that is the 2, y coefficient, that is again 2, constant term, that is the 10. Now we will verify the condition. So a1 by a2 ratio, that we will calculate. b1 by b2 ratio, that we will calculate. If these both the ratios are same, then we can go for the third ratio. So now it's a 1 by 2, b1 by b2 is also 1 by 2. So now we have to calculate the third ratio, that's a c1 by c2. What the c1 value? 5. What the c2 value? 10. So that is the 1 by 2. So here all the ratios are same. So a1 by a2, that is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So that means the lines are coincide to each other. Okay, in this case, so the equations have infinite many solutions, and both the lines are coincided, that means all the points of both the lines are matched. It's a common point. Okay, so we can say, so lines are consistent. Okay, yeah, equations are consistent. Okay, so equations are consistent, that means we are getting a solution, so we have to represent them graphically. So now graphical representation. For that, both the equations, we will take the 2 points for each. X plus y is equal to 5, and another one is a 2x plus 2y is equal to 10. Okay, for this equation we will calculate the 2 points, and for this equation also we will calculate the 2 points. Obviously we have both the variables here, and the constant term is also there, so the graph of this equation, that will intersect with both the axes. So when I take the x0, so y coordinate is 5. When y is 0,
So x coordinate is what? 5. Here again see, both the equations are same. When I divide this equation by 2, we can get the same equation, right? X plus y is equal to 5 when I divide it by 2. Okay, so we have to write down the same point here, 0, 5, 5, 0. Clear? Now we will plot a graph. First quadrant, that will be more focused part. X dash, x, y and the y dash. Intersection point 0 for both the axes. Okay, now here we will take the 1, 2, 3, 4, 5. Here I will take it 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So one point is the 0, 5, x coordinate 0, so point on the y axis. So this point is called the 0, 5. Okay, and 5, 0. This one is the 5 and 0. Okay. Scale factor note down कर लेंगे. What the scale factor? X axis and the y axis. What is on the x axis? The scale factor is 1 centimeter is equal to 1 unit. 1 centimeter is equal to 1 unit. And on the y-axis 1 centimeter is equal to again 1 unit. Okay, and both the points we will join them. It's like this. Okay, and we will write down both the equation. X plus y is equal to 5 and second equation is a 2x plus 2y is equal to 10. Clear? So this way we can verify the relation, it's a consistent or inconsistent, and if it is consistent, so we represent them in a graphical form. So let's do the second question. Now the second question, the pair of equation that is given to us x minus y is equal to 8 and the 3x minus 3y is equal to 16. Okay, let's first check the conditions. For that, coefficients. Okay, for the equation 1, a1, b1, c1, then a2, b2, c2. Okay, x coefficient is 1, y coefficient is minus 1, constant term that is the 8. For the second equation, x coefficient is 3, y coefficient is minus 3, that is the minus, that's a b2, and the constant that is 16. Okay, check. Now first we will check the a1 by a2. So a1 is what? 1, a2 is what? 3. Okay, that's a 1 ratio. Now second ratio, b1 by b2. What is that? Minus 1 and upon minus 3. So both they will be cancelled out, so 1 by 3. So third ratio will also be required because these both the ratios are same. Okay, so third one is the c1 by c2. So 8 by 16. We know that 8 2s are 16. So it will be 1 by 2. So here I can say a1 by a2 that is equal to b1 by b2. These both the ratios are equal. But that is not equal to with the third ratio. Not equal to c1 by c2. Okay, so the lines are parallel to each other, and in that case we didn't have any solution, so the two equations have not any solution. So given equations are inconsistent. ठीक है बच्चों? चलो, let's do the third question.
When we have the pair of equation consistent, then we have to represent them graphically. So in the second question we didn't require that part. Chalo, third one. So the third equation, the pair of equation is given 2x plus y minus 6 is equal to 0, and second, that is the 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. That is again a pair of equation. Okay. Now let's look at here coefficients. चलो coefficients calculate करें बच्चों सबसे पहले. चलो a1, b1, c1. X coefficient, that is 2, y coefficient, that is plus 1, constant, that is minus 6. Okay. Then a2, b2, c2. X coefficient, that is 4, y coefficient minus 2, constant term minus 4. See, in this pair of equation we have the constant term on right side, but in both the equation we have on the same side, so we can take it directly. Okay. Now we will calculate the a1 by a2, b1 by b2, and the c1 by c2. Now a1 by 2, it's a 2 by 4, that means 1 by 2 by the calculation. So b1 by b2, it's a 1 upon minus 2, that means minus 1 by 2. So here you can see these both are different, so we didn't require the third ratio. So a1 by a2, that is not equal to b1 by b2. So lines are intersecting each other. Okay. So pair of equations have unique solution. Okay. So equations are consistent. In that case, we have to represent them graphically. So graphical representation for both the equations. So 2x plus y minus 6 equal to 0. Second is the 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. To make our calculation easy, here I am taking a y here. So y is equal to 2x and minus 6. It will shift to the right side. So minus 6 and plus 2x, right side minus 6 there. Minus 6 को शिफ्ट करेंगे बच्चों plus 6 and 2x को शिफ्ट करेंगे तो minus 2x. थोड़ा कैलकुलेटेड इजी होगा हमारे लिए. चलो here the whole equation is divisible by 2 first of all. So it will be 2x minus y minus 2 is equal to 0. Now minus y को शिफ्ट कर लेंगे तो 2x minus 2 is equal to minus y, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो y. So y is equal to what? 2x minus 2. राइट. अब दोनों के लिए हम दो पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं बच्चों. ओके. चलो x कोऑर्डिनेट y. ओके. फॉर एग्जांपल अगर x में 0 ले रहा हूं तो 6 minus 0 हो जाएगा. ओके. तो दैट इज द 6. ओके. सामने 1 और ले लेते वैल्यू. अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो दैट मींस 2 1s are 2, तो 6 minus 2 it will be y will be 4. Okay. Here कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, पॉसिबल तब तक नेगेटिव नहीं आना चाहिए आइदर x या y. ओके. क्योंकि हम नॉर्मली फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, राइट. अगर यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूं तो -2 हो जाएगा. तो 1 ले लेते हैं x की वैल्यू. अगर x की वैल्यू 1 ले रहे तो 2 1s are 2 minus 2 यानी कि y हो गया 0. ओके. अब 2 ले लीजिए, x की वैल्यू 2 तो 2 2s are 4, 4 minus 2 it will be 2. ठीक है. अब इजीली हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे बच्चों. y dash x and the here x dash. इंटरसेक्शन इज 0. x पे मैक्सिमम हमारे पास 2 चाहिए तो 1 2 3 4 कुछ और एक्स्ट्रा नंबर ले लेते हैं. y पे हम ले लेते 1 2 3 4 5 6 7.
चलो इस ग्राफ को पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा 6 से वहां पे, सो दिस पॉइंट इज 0,6। चलो फिर x1 तो y4 है, इट्स समवेयर हियर। ओके, ये हमारे पास हो गया 1,4। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो नाउ ये होगा इक्वेशन भी यहां पे लिख लेते हम। ओके, मेन इक्वेशन लिखना, ये नहीं लेना है। 2x plus y minus, so here I have to write down 2x plus y minus 6 is equal to 0। चलो सेकेंड इक्वेशन पे जाते हैं यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट 1 y 0, तो ये यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट, और x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, समवेयर हियर। ओके, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। सो थोड़ा सा मेरे से ग्राफ लोड करने में प्रॉब्लम आएगी बच्चों, बट आपको नहीं आएगी। ओके, इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सो दैट्स अ मेन इक्वेशन लिखेंगे 4x minus 2y minus 4 इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों कुछ यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सो ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू मुझे थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आएगा बच्चों, राइट। बट अगर आपकी ओर से देखें, इस पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, ये 2 2। ओके, आई थिंक ये 2 and 3 करके बनना चाहिए, ये आ जाएगा 1 and 0, राइट। सो अगर ये थोड़ा सा ऊपर आएगा पॉइंट, ऐसा लग रहा है, सो आई थिंक ये बनना चाहिए 2 and 3, राइट। हाँ, क्योंकि अगर x2 बनेगा, ओके 2 and 2 2 ही आएगा बच्चों साइड। हाँ, 2 2 ही बनेगा। ओके, अगर x कोऑर्डिनेट 2 ले ले तो 4 माइनस, हाँ 2 2 यही पॉइंट आएगा, एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे आ जाएगा आपका, जहाँ पे 2 है। ओके, आपके लिए तो ग्राफ में एक्यूरेट पॉइंट मिल पाएगा, मेरे लिए एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके चलना होगा बच्चों। ओके, और मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ अपने आंसर को। अगर मैं x कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ तो 2 2 4, तो 6 minus 4 that will be 2। so इक्वेशन में अगर रिप्लेस कर ले तो यहाँ मेन इक्वेशन है, so 2 2 4 4 plus 2 यानी 6 minus 6 0, राइट। इस तरह से मैं वेरीफाई कर पाऊंगा, बट आपको तो ग्राफ पर से डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, राइट। सेम वे यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते, 2 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 2 8 8 और ये हमारे पास आएगा 2 2 4, राइट। तो 8 और ये -4 -4 -8 तो भी 0, इन्हें दोनों को सेटिस्फाई करे तो प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। जो सॉल्यूशन आ गया वो क्या हो गया, ट्रू। ठीक है बच्चों, चलो कम टू द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें और एक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रहे बच्चों, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज 2x minus 2y minus 2 equal to 0 एंड सेकंड पेयर है 4x minus 4y minus 5 equal to 0। चलो कोएफिशिएंट्स पहले कैलकुलेट करें बच्चों। चलो a1 b1 c1 and a2 b2 c2। चलो a1 is what, 2, b1 minus 2 and c1 minus 2, a2 4, b2 minus 4 and c2 minus 5। ओके, रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। चलो a1 by a2 2 by 4, तो क्या रहेगा बच्चों, 2 by 4 1 by 2, b1 by b2 minus 2 by minus 4, minus minus cancel, 2 2s are 4 1 by 2 and c1 by c2 that is minus 2 by minus 5 that is the 2 by 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि a1 by a2 that is equal to b1 by b2, ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, बट थर्ड रेशियो डिफरेंट आ रहा है, c1 by c2। ओके, सो लाइन्स आर पैरेलल टू each other। okay, so they
have no common solution. Okay, so equations are, we can say, inconsistent. Understood, bachcho? Yes. Now students, we will discuss about the question number 5. Okay, now what the question? Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is the 36 meter. यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो perimeter of half perimeter of this rectangular garden is what? 36 meter. And when we compare the length and breadth, so length is 4 meter more than its width. Okay, so find the dimensions of this garden, that is length and breadth that we need to calculate. Okay, so what problem is there? So first we will take the two variable, one for the length, another for the breadth, otherwise width. Okay, now let x मीटर हम लेंथ ले रहे हैं and width is y मीटर. ओके, अब दो अलग अलग सिचुएशन है बच्चों. अच्छा, इसका पैरामीटर भी लिख लेते हैं. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, पैरामीटर का फॉर्मूला होगा ट्वाइस द लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, लेंथ, ब्रेड्थ, लेंथ एंड द ब्रेड्थ. ओके, सो 2 टाइम्स लेंथ आ गया, 2 टाइम्स ब्रेड्थ आ गया, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, अब हम पहली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं. As for first condition, चलो ध्यान से समझना बच्चों. हाफ द पेरीमीटर कितना है? 36. यानी जो पेरीमीटर आपका है, कितना है पेरीमीटर? इसको हम क्या करेंगे बच्चों? हाफ. कितना आंसर आएगा? 36. ठीक है, दैट इज गिवन. हाफ द पेरीमीटर, दैट इज द 36. तो पेरीमीटर को हमने हाफ यानी 2 से डिवाइड किया एंड वी गेट द 36. 2 टू कैंसिल कर पाएंगे बच्चों यहां पे, तो व्हाट रिमेनिंग? x plus y is equal to 36. ये हमारे एक इक्वेशन हो गई. चाहो तुम नंबर दे भी सकते हैं इसको. ओके, चलो अब सेकंड सिचुएशन. एज पर द सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ यानी x, इज यानी इक्वल टू 4 मोर यानी प्लस, लेस होता तो माइनस करते, देन व्हाट? वेट y. तो इक्वेशन हमारा बन गया x इक्वल टू y प्लस 4. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. ओके, चलो अब इसको हमें सॉल्व करना है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन. ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है. इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफिकली करना है, तो ग्राफिकली हम बात करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा x प्लस y इज इक्वल टू 36 और सेकंड इक्वेशन मेरा x इज इक्वल टू y प्लस 4. ओके, चलो 2 पॉइंट्स ले लेंगे बच्चों. अगर मैं x 0 ले रहा हूं तो y कितना होगा बच्चों? 36 और y 0 ले रहे हैं तो x 36. सेम वे यहां पे x एंड y. ओके, अगर y 0 ले रहा हूं तो ऑब्वियसली x क्या हो जाएगा? 4. ओके, x 0 नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पे हम नहीं जाना चाहते, राइट. तो और कोई ऑप्शन ले लीजिए, राइट. सो जैसे हमने y 0 ले लिया तो y 4 ले लीजिए. 4 के मल्टीपल में ले लीजिए क्योंकि वैल्यू हम यहाँ उसी तरह से मेंटेन करेंगे. 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पे भी मेंटेन कर लेंगे. सो 4 अगर ले लेते हो तो ये आ जाएगा आपका 8. अंडरस्टूड. चलो अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें बच्चों. x डैश y डैश y. चलो 4 के मल्टीपल में लिखते हैं. x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना चाहिए? 36 और y भी 36 चाहिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 4
8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. इनफ। चलो यहाँ पे भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and 36. इनफ। चलो इसका ग्राफ पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट 0, y is 36। x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, 36 है वहां पे, सो इट्स अ 0,36 दिस पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट x 36 एंड y 0, y 0 है तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, इट्स 36,0। इसको हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। ओके, चलो इक्वेशन भी नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, x plus y is equal to 36। चलो सेकंड पे याद है, x 4 है तो y क्या है 0, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, और x 8 है तो y क्या है 4। वेरी क्लोज, 8 एंड 4, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास क्या 4,0। ओके, अब इसको भी हम आगे जाके इंटरसेक्ट करते जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन पाएगा। यहाँ पे भी इक्वेशन लिख लेते हैं, x is equal to y plus 4। ओके, और यहाँ पे हम जाएंगे तो एक अप्रोक्सीमेट 20 जैसा हमारे पास मिल रहा है, और ये हमारे पास ग्राफ मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, बट ये कुछ हमारा जो पॉइंट आएगा इस 16 के आसपास आएगा, यानी कि 20 आएगा और ये आएगा 16। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्रॉस है राइट, बट मुझे आंसर के अकॉर्डिंग मैं बिहेव कर रहा हूँ। ओके, आपके ग्राफ में एक्यूरेट आपको मिल जाएगा ये वैल्यू राइट। आप यहाँ से y एक्सिस पे आओगे तो 16 को मैच करेगा, यहाँ पे x एक्सिस पे जाएंगे तो ये 20 को मैच करेगा राइट। सो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों 20,16। ओके, दैट मींस x कोऑर्डिनेट 20, x किसके लिए हमने अज्यूम किया है, दैट इज द लेंथ। सो लेंथ ऑफ गार्डन that is equal to 20 meter and width is equal to 16 meter। स्केल फैक्टर भी लिखेंगे हम यहाँ पे राइट। तो स्केल फैक्टर यहाँ पे x एक्सिस पे हमने 4 लिया, y एक्सिस पे भी क्या लिया हमने 4 सेंटीमीटर। सो x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 राइट। ये हमारे पास क्या है मीटर, यूनिट मीटर है हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ का, सो यूनिट भी मेंशन कर लेना है बच्चों। ओके ना, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 and determine the coordinates of the triangle formed by these lines and x axis। यानी इन दोनों के ऑब्वियसली जो ग्राफ बनेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन और एक एक्स एक्सिस हमारे पास रहेगा, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे राइट। उस ट्रायंगल पर से उसके कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, एंड जो भी ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसको हमें शेडेड भी करना है। ओके, तो सबसे पहले तो इन दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x minus y plus 1 is equal to 0। यहाँ पे कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं करना है, आपके पास रेडीमेड इक्वेशंस है 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें वैसे तो कोई भी हम ले सकते हैं, बट y और 1 को शिफ्ट कर लेते हैं तो x is equal to minus y राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस y एंड माइनस 1। ओके, यहाँ पे y की कोएफिशिएंट स्मॉल है तो उसको प्रायोरिटी लेते तो 3x को और माइनस 12 को शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस 12 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 12 और 3x शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी माइनस 3x। So y is equal to 12 minus 3x upon what 2 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। इसको और थोड़ा भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 को इंडिविजुअली डिवाइड कर लो तो 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 बनेगा बच्चों, और ये 3x अपॉन क्या बनेगा 2। थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। ओके, चलो अब यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स लेंगे ग्राफ बनाने के लिए बच्चों। चलो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं y की वैल्यू ले रहा हूं 0 ले लेते हैं,
चलेगा, x की वैल्यू -1, यहाँ पे कोई रियल वैल्यू वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली सिचुएशन नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 मैनेजेबल है। ओके, और कोई वैल्यू ले लेते, फॉर एग्जांपल मैं 3 ले लेता हूँ। ओके, तो 3 - 1 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट ना, ये थोड़ा एक हम पार्ट बना के रखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आए, यहाँ पे अब देखो इस पार्ट को ध्यान रखना बच्चे, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। अब उस केस में इवन होगा तो फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। तो एक तो मैं x 0 ले लूं तो काम बन जाएगा अपना, तो ये पूरा 0 हो गया, तो व्हाट रिमेनिंग 6, ये पूरा 0 हो जाएगा अगर x 0 ले रहा हूं तो। ओके, अब x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 1 जा 3 ऑड आ जाएगा, 2 से डिविजिबिलिटी नहीं होगी, राइट। 2 ले लेते हैं। ओके, तो अगर 2 ले ले तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3, तो 6 - 3 क्या रहेगा बच्चों, 3। इजी। चलो अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बहुत छोटे छोटे नंबर्स ही, हमने बहुत बड़े नंबर्स नहीं लिए, आपको भी ध्यान रखना बहुत बड़े नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितना चाहिए हमें, अच्छा ज्यादा y पे तो 60 के y और x पे तो हमें 2 तक ही चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट मींस दैट पॉइंट कम्स ऑन अ x एक्सिस। कहां है, यहीं पे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, उसको हम यहां पे लेबलिंग कर लेते हैं। फिर यहां पे आएंगे 2 3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3, इट्स समवेयर हियर, तो यहां बन गया आपका 2 and 3। इसको भी हम पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है बच्चों, आपको स्केल से और ग्राफ पेपर से करना है तो आपको एक प्रॉपर एक्यूरेट बनेगा, मुझे एक रेफरेंस में ग्राफ प्लॉट करना है आपके लिए। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6, so it's somewhere here, x coordinate is what, 0, and y coordinate is what, 6. Okay, x coordinate 2 and y coordinate 3, x coordinate 2 and y coordinate what, 3, तो यही पॉइंट आ गया वापस। ओके, चलो मैच हो रहा है, तो टाइम हो गया। ओके, सो अब दोनों इक्वेशंस लिखना रहेगा, यहाँ पे ले लेते हैं किसका इक्वेशन, ये ग्राफ है x - y + 1 = 0, और ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया सेकंड वन, किसका प्लॉट किया हमने, इट्स 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ प्लॉट किया। अब देख सकते हो आप, स्केल फैक्टर अब लिख लेते हैं ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। x axis 1 centimeter is equal to, और ये भी 1 centimeter is equal to, on x axis 1 centimeter is equal to 1 यूनिट, यहाँ पे कोई यूनिट दिया नहीं है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, चलो अब देखते हैं, तो हमारे दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशंस के, एक इक्वेशन का ये ग्राफ हुआ, सेकंड इक्वेशन का ये ग्राफ हुआ, और x एक्सिस उससे इतना पार्ट हमारा देखो बच्चों, राइट, इसको हम थोड़ा शेडेड बना देते तो आपको थोड़ा सा आइडिया है। ओके, भी समझ पा रहे होंगे आप। ओके, सो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, पर इसके भी कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, तो ये कोऑर्डिनेट तो मोस्टली रेडी है हमारे पास। ओके, इसको हम लेबलिंग कर लेते हैं P पॉइंट, इसको हम ले लेते Q, और इसको हम ले लेते R। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0। ओके, तो हमने जो भी ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसको हमने शेडेड भी कर लिया, और उसके जो वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट्स P Q एंड R साइन कर लिया। P कोऑर्डिनेट 2 3, Q है -1 and 0, और R थर्ड वर्टेक्स, थर्ड जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 and 0। इस तरह से ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए बच्चों। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of so formed is the intersecting lines, parallel lines and coincident lines। यानी इस हर एक सिचुएशन के लिए हमें
एक इक्वेशन हमें प्रोवाइड करना है. वन इक्वेशन इज गिवन, अनदर वन दैट वी हैव टू राइट डाउन. ओके, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. It's very right. चलिए, तो अब एक इक्वेशन तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे. It's 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Okay. Now intersecting lines के लिए कंडीशन क्या है बच्चों? So intersecting line के लिए a1 by a2 that is not equal to b1 by b2. Okay. Parallel lines के लिए कंडीशन a1 by a2 that is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. Okay. और coincident lines के लिए that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 that is equal to c1 by c2, all the ratios. Okay. अब सिंपल सा अगर एग्जांपल कंपेयर करना है तो हमें a1 by a2 not equal to b1 by b2 इस केस में पढ़ना चाहिए. अब इक्वेशन हमारा देखो, गिवन क्या है, 3y minus 8 is equal to 0. Okay. And अनदर इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो कोई भी कहीं से भी आप स्टार्ट करो. जैसे 2x है, मैं 4x ले रहा हूं, तो रेशियो क्या होगा बच्चों 2 and 4 का 1/2. तो इस रेशियो को 1/2 नहीं होना चाहिए, तो 3 2 6 होता है. तो 6 अदर देन 6 आप कोई नंबर ले लीजिए, राइट. तो फॉर एग्जांपल मैं 5y ले लेता हूं, -8 एज इट इज, आपको कोई परेशानी नहीं है, राइट. तो आप यहां पे देख सकते हो बच्चों कि a1 by a2 that is equal to 2/4. Okay, and that is 1/2, and b1 by b2 that is the 3/5. तो कंडीशन वेरीफाई हो रही है, a1 by a2 that is not equal to b1 by b2. complete. So it's another equation. Okay, ये आपका एक और इक्वेशन बन गया. ओके, एग्जांपल इसके काफी सारे हो सकते हैं, हमें एक ही एग्जांपल इसका प्रोवाइड करना है बच्चों. ओके, चलो अब यहाँ पे भी गिवन हम ले लेते हैं 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. काफी सिंपल है बच्चों. चलो अनदर इक्वेशन देखो, a1 by 2 equal to b1 by b2 बनना चाहिए. तो अगेन मैं वही ले रहा हूँ, 2x है तो मैं यहाँ 4x ले रहा हूँ, चलेगा. ओके, और a3y ये 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6y, क्योंकि दोनों रेशियो सेम बनने चाहिए. बट 8 2 जा 16 होगा, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 16 के अलावा कुछ भी ले लो, राइट. मैं +9 ले लेता हूँ, एनीथिंग. ओके, अब देख सकते हो आप a1 by a2 यानी कि 2/4, वो आंसर कितना हो गया बच्चों 1/2. फिर b1 by b2, सो ये 3/6, ये आंसर कितना हो गया 1/2. थर्ड रेशियो देखो बच्चों c1 by c2, तो ये -8/9 हो गया. तो आप देख सकते हो बच्चों कि a1 by a2 that is equal to b1 by b2 बन रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो रहा है, राइट. ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है. चलिए, कोइंसिडेंट लाइंस, उसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल है. देखो गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. इसको कोई ना कोई नंबर का मल्टीपल बढ़ा लो. अनदर इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. सिर्फ कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे a1 by a2 यानी कि 2/4, तो कितना आंसर बनेगा बच्चों 1/2, ठीक है. चलो फिर b1 by b2, y की कोएफिशिएंट y की कोएफिशिएंट, तो 3/6, तो ये आंसर भी कितना है बच्चों 1/2. और थर्ड वन c1 by c2, तो -8 upon -16, तो ये भी देख सकते हो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल, तो ये आंसर भी कितना बचा बच्चों 1/2. तो यहाँ पे देख सकते हो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ये फुलफिल हो रहा है. सो ये आपका एक अनदर इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड. यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है. क्लियर बच्चों.